लूना चांद की सतह पर जाकर क्रैश हो गया। आज की शॉकिंग न्यूज, चांद पर क्रैश लैंडिंग। चांद पर क्रैश लैंडिंग हुई है। बड़ी खबर, लैंडिंग से एक दिन पहले रूस का मून मिशन फेल। ब्रेक करिए विजुअल्स के साथ। रूसी स्पेसक्राफ्ट लूना 25 लैंडिंग से पहले क्रैश। रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने दी जानकारी। कल ही उभरे थे स्पेसक्राफ्ट में कुछ असामान्य लक्षण। सीधे आइए, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रूसी मून मिशन फेल हो गया है, यह जानकारी आ रही है। लूना 25 क्रैश कर गया है, यह बड़ी खबर है। टिकर ऑफ करिए प्लीज जरा। The coming week with its Chandrayaan-3 lunar module set to land on the moon on Wednesday. Unfortunately, Russia's Luna 25 spacecraft that was to have landed a day earlier has crashed and the mission has ended. Now, as the clock ticks away, all eyes are on India's Chandrayaan-3 lunar probe. Per the latest update, a landing has been scheduled for 1800 hours IST. That's 12:34 p.m. GMT on Wednesday. Russia's maiden moon lander Luna 25 crashed on the lunar surface after suffering a mishap on Saturday, the 19th of August. The incident was confirmed by its space agency Roscosmos, marking a tragic end to the country's first moon mission in 47 years. Details reveal that the Russian lander was moving into its final pre-landing orbit when the mishap took place. ये बहुत बड़ी खबर है। ये देखिए, रूसी स्पेसक्राफ्ट लूना 25 चांद पर लैंडिंग से पहले क्रैश। प्री लैंडिंग ऑर्बिट में जाते वक्त स्पेसक्राफ्ट में आई दिक्कत। कल चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला था लूना 25। रूस ने इसी महीने लूना 25 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था। लूना 25 ने चांद से शनिवार को कुछ डेटा भेजा था। स्पेसक्राफ्ट से मिले इंफॉर्मेशन की एनालिसिस जारी है, यह कहा गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। हमारे जितने भी दर्शक, एक बार फिर से ये ब्रेकिंग दिखाइए। यह आज की बड़ी खबर है। रशिया का मिशन मून जो है वो फेल कर गया। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यह बड़ी जानकारी आपके सामने विद द विजुअल। बड़ी खबर आ रही है, चंद्रयान 3 के लैंडिंग टाइम का ऐलान कर दिया गया है। 23 अगस्त की चांद की सतह पर होगी लैंडिंग। चंद्रमा की सतह पर शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 उतरेगा। और भारत का चंद्रयान 3 चांद के और नजदीक पहुंच गया है। चंद्रयान 3 ने लैंडर डी बूस्टिंग का पहला फेज पूरा कर लिया है। कल चंद्रयान ने चांद की तस्वीर भी भेजी है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। इसरो ने चंद्रमा का नया वीडियो शेयर किया है। इससे चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के LPDC यानी लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरे ने कैप्चर किया है। LPDC चंद्रयान 3 लैंडर के साथ जुड़े 8 सेंसरों में से Luna 25 was expected to make a soft landing on the moon on Monday, 21st of August. But the Russian space agency lost contact with the spacecraft on Saturday during a critical maneuvering phase of the mission. Meanwhile, India's Chandrayaan 3 is inching closer to the moon. Currently, the lander is in an orbit which brings the craft as close as 25 kilometers away from the moon. Let's now take a quick look at the latest details we have on the moon landing. First of all, the latest maneuver to bring the craft to its final orbit was done at 2 a.m. Indian Standard Time on Sunday. This is the second and final deboosting of the Vikram lander. Second, in the next 3 days, the lander craft will test its various onboard instruments and sensors. The much-anticipated lunar landing is slated to happen on Wednesday. The Indian Space Research Organization says that the spacecraft will land on the moon using a powered descent maneuver. The time of the landing has also been declared by ISRO, and Chandrayaan 3 will touch down on the lunar surface at 6 p.m. Indian Standard Time. Chandrayaan 3 spacecraft is being sent to the moon with the objective of making yet another Chandrayaan 3. We're now being joined by Professor Narendra Bhandari. He's a space scientist, Chandrayaan-1 mission of ISRO from Ahmedabad. Professor, thank you very much for joining us at this hour and welcome to the program. I will start by asking you, what implications will this crash have on future lunar missions, not only for Russia, but other nations who are...
हिंदुस्तान का मिशन चंद्रयान 3 हर मुश्किल और चुनौतियों को पार करते हुए एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ अपनी मंजिल और मुकाम की ओर बढ़ता चला जा रहा है। मिशन मून की एक और सीढ़ी को पार करते हुए आज देर रात 1:50 पर विक्रम लैंडर की सफलतापूर्वक डीबूस्टिंग की गई। यानी चंद्रयान की रफ्तार और धीमी करने में सफलता मिल गई है। इस बात की जानकारी खुद इसरो ने ट्वीट कर दी। ट्वीट करते हुए इसरो ने लिखा, दूसरी और अंतिम डीबूस्टिंग ऑपरेशन ने एलएम कक्षा को सफलतापूर्वक 25 किलोमीटर गुणे 134 किलोमीटर तक कम कर दिया है। मॉड्यूल को आंतरिक जांच से गुजरना होगा और लैंडिंग स्थल पर सूर्योदय का इंतजार करना होगा। 23 अगस्त को शाम करीब 5:45 पर लैंड करने की उम्मीद है। इस डीबूस्टिंग के साथ विक्रम लैंडर चांद की सबसे निचली कक्षा में पहुंच गया है, जिसके बाद अब इसकी चांद से न्यूनतम दूरी महज 25 और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर ही रह गई है। यानी हमारा चंद्रयान अब बिल्कुल चांद के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। चंद्रयान 3 को अब चंद्रमा की सतह पर सूर्य के उदय होने का इंतजार है। अभी चंद्रमा पर रात है और 23 तारीख को वहां सूर्योदय होगा। विक्रम लैंडर सूरज की रोशनी और ताकत का इस्तेमाल कर अपने मिशन को आगे बढ़ाएगा। रोवर दोनों ही पावर जनरेटर करने के लिए सोलर पैनल यूज करेंगे। इस मिशन में प्रज्ञान रोवर अगले 14 दिन तक अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगा। अब इन चीजों के बीच एक चीज भी समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए चांद की सतह पर उतरना बेहद मुश्किलों और हजारों चुनौतियों भरा होता है। दरअसल चंद्रमा की सतह आसमान है और गड्ढों पत्थरों से भरी हुई है। इस तरह की सतह पर लैंडिंग खतरनाक साबित हो सकती है। चंद्रमा पर लैंडिंग के अंतिम कुछ किलोमीटर पहले ही हालात सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। थ्रस्ट से गैस निकलती है। इन गैसों के कारण चंद्रमा की सतह से काफी बड़ी मात्रा में धूल उड़ती है, जो ऑन बोर्ड कंप्यूटर और सेंसर्स को नुकसान पहुंचा सकती है या भ्रमित कर सकती है। इसके अलावा चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के लिए बड़ी मात्रा में ईंधन की जरूरत पड़ती है, जिसके जरिए अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाकर नीचे उतरने की स्पीड कम की जाती है। हालांकि इतना ईंधन लेकर उड़ान भरना खतरनाक हो सकता है। लैंडिंग इसलिए भी चुनौती से भरी है क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी के मुकाबले वातावरण करीब 8 गुना पतला है। ऐसे में पैराशूट के जरिए भी किसी अंतरिक्ष यान को उतारा नहीं जा सकता है। इन सब के बीच इस बार इसरो ने पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए गलती से भी कोई गलती ना हो इसका पूरा इंतजाम किया है। यानी इस बार चांद की धरती पर कदम रखने में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। चंद्रयान मिशन 2 ने चांद से आखिर 2 किलोमीटर दूर अपना मिशन अधूरा छोड़ा था। इस मिशन की क्रैश लैंडिंग हुई थी, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए लैंडर की तकनीक में बड़ा बदलाव किया। विक्रम लैंडर के लेग्स को बहुत मजबूत बनाया गया है। अगर विक्रम को किसी बड़े गड्ढे में भी लैंडिंग करनी पड़ी तो उसे कोई मुश्किल नहीं आएगी। इसे लेजर डॉपलर वेलोमीटर कहते हैं। इस लेजर की रोशनी लगातार चांद को छूती रहेगी। इसरो के कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिकों का इस पर पूरा नियंत्रण रहेगा। हिंदुस्तान का चंद्रयान 3 चांद पर तिरंगा फहराने और इतिहास रचने से महज चंद कदम ही दूर है। लेकिन इन सब के बीच रूस के मिशन मून में एक बाधा आ गई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक लूना 25 एयरक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आई है। दरअसल ऑर्बिट बदलने के दौरान इसमें इमरजेंसी की स्थिति बनी। इससे ठीक ढंग से ऑर्बिट चेंज नहीं हो सकी। मैनेजमेंट टीम स्थिति का एनालिसिस कर रही है। रूस के लूना 25 को 21 अगस्त को चांद पर लैंड करना है। ऐसे में रूस के मिशन मून को एक बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि रूसी एजेंसी ने तकनीकी खराबी के बारे में ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की है। अब देखना ये होगा कि रूस का मिशन सक्सेसफुल होता है या नहीं। लेकिन हमारा चंद्रयान 3 एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। ऐसे में विक्रम का विजय होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। चंद्रयान 3 की एक और कामयाबी। फाइनल डीबूस्टिंग हिट 23 अगस्त फिक्स। चंद्रयान से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर चांद। थोड़ा इंतजार, चांद से साक्षात्कार। जय हिंदुस्तान, मुट्ठी में आया चांद। रोवर बाहर आएगा और इसरो से कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलेगा।
इस दौरान इसके पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ेंगे। मिशन मून का सफर समाप्त हो गया। रूसी समाचार एजेंसियों के मुताबिक लूना 25 चंद्रमा से टकराकर क्रैश हुआ। इससे पहले जानकारी मिली थी कि अंतरिक्ष यान में खराबी आई और वो ऑर्बिट ट्रांसफर करने में नाकाम रहा। कमांड दिए जाने के बाद भी थ्रस्टर फायर नहीं कर सका। ऑन बोर्ड कंप्यूटर में इमरजेंसी दर्ज की गई। 19 अगस्त को एक समय विशेष पर इसको लूना 25 स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया तो एक बड़ा झटका मिशन मून को लगा है रूस के। और दूसरी तरफ अगर हम भारतीय चंद्रयान की बात करें, चंद्रयान 3 की बात करें, तो धीरे धीरे अब रूस से मिशन मून को बड़ा झटका लगा। रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया है। चांद की सतह से यह टकराया है रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट, और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ने बाकायदा इस क्रैश की पुष्टि कर दी है। तो आपको बता दें, सोवियत रूस से अलग होने के बाद रूस का यह अपना पहला चंद्र मिशन था जिसमें जबरदस्त झटका रूस को लगा है। और रूसी अंतरिक्ष यान लूना 25 प्री लैंडिंग कक्षा में प्रवेश करने की कोशिश में विफल हुआ। और अब जो खबर आ रही है जिसकी कि रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ने पुष्टि कर दी है कि लूना 25 स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया तो एक बड़ा झटका मिशन मून को लगा है रूस के। और दूसरी तरफ अगर हम भारतीय चंद्रयान की बात करें, चंद्रयान 3 की बात करें, तो धीरे धीरे अब चांद में प्रवेश करने के लिए तैयार है। 23 तारीख को उसको चांद पर लैंड करना है, लैंडर को। और दूसरी तरफ रूस के मिशन मून को एक बड़ा झटका लगा है। और जैसा कि आपको बता दें कि इसकी पुष्टि जो है वो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ने कर दी है कि रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट जो है वो क्रैश हो गया। तो रूस के मिशन मून को ये एक बड़ा झटका लगा है, तो चांद से दूर रह गया लूना। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो डी बूस्टिंग का जो प्रोसेस है उसकी दूसरी प्रक्रिया कल चंद्रयान 3 ने पूरी कर ली और अब 23 तारीख को चांद में प्रवेश करेगा और लैंड करेगा जो लैंडर है। और अब उसी का इंतजार है, लेकिन उससे पहले रूस को ये एक बड़ा झटका लगा है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ने बाकायदा लूना 25 स्पेसक्राफ्ट क्रैश होने की पुष्टि कर दी है। और टी राघवन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राघवन, एक बड़ा झटका, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ने बाकायदा इसकी पुष्टि कर दी इस क्रैश की। जी बिल्कुल, देखिए पंकज, इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मून मिशन है वो कितना जटिल है, कितनी जटिल प्रक्रिया से सारे सैटेलाइट को गुजरना होता है। जिस तरह से रोसकॉस्मोस जो रूस की एजेंसी है बताया, क्योंकि हमें ये पता है कि कल कोशिश की गई थी जो लैंडिंग ऑर्बिट है उसमें लाने की यान को, लेकिन बताया गया कि जो इंजन फायर करने का कमांड यहाँ से अर्थ स्टेशन से भेजा गया था वो ठीक से एग्जीक्यूट नहीं हुआ, जिसके बाद उसको कोर्स करेक्शन की भी कोशिश हुई, उसमें भी कामयाबी नहीं मिली। जो रोसकॉस्मोस ने अभी बताया, ये कहा गया कि जो प्रोपल्शन जो सिस्टम है उसके मैन्यूवरिंग में डिविएशन हो गया। जो यहां पर कैलकुलेटेड, आप जानते हैं कि ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स की मेमोरी में कैलकुलेटेड मूव्स फीड किए जाते हैं, अगर वो वहां पर जो एक्चुअल में हो रहा है उससे वो मेल नहीं खाते तो वो ऑर्बिट जो है वो इंटेंडेड ऑर्बिट में हमारा उपग्रह नहीं पहुंच पाता। यही वजह रही कि जो ऑर्बिट है वो कम से कम वहां कह सकते हैं कि एकदम खो गया, वो लॉस हो गया। उसके बाद अब ये बताया गया है कि वो जो चांद के सरफेस से टकराकर क्रैश लैंड कर गया है। एक बड़ा झटका जरूर कह सकते हैं रूस को, लेकिन वहीं अगर हम हमारे चंद्रयान 3 मिशन की बात कर लें तो जो फाइनल डी बूस्टिंग थी वो शनिवार रात या फिर हम